Okay, everyone. So let us start with today's session. Uh, I think people will join later. So we'll wait for 1 more minute and then we will start. Good morning, sir. Good morning. Okay, in the last time, as I have discussed, it is a spherical coordinate system and best example is geographical system. Uh, so it is denoted by three coordinates. What are the three coordinates? R, then theta, and then phi. So there are three coordinates of this spherical system. R is the distance from origin, theta is the angle made with positive z axis, and phi is the angle made with the projection of this point P. अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया P डैश, तो P डैश का जो भी एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ इन xy प्लेन is called as a theta. Okay. So you know that these two quantity r and theta in general as well. Okay. But remember these formulas we have last time discussed why these formulas are coming. X is equal to r sin theta into cos phi, y is equal to r sin theta into sin phi, and z is equal to r cos theta. Basically trigonometry हमने use किया था, and according to the trigonometry and the properties we have arrived at this particular time. We have also seen that what is r square. जब हमने ये सब फॉर्मूले का स्क्वायर करके ऐड किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वी गॉट दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इट कैन बी आल्सो सीन बिकॉज ऑफ दिस ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड it is a distance from origin. So by distance formula also you get that r square is equal to x square plus y square plus z square. तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो ये पॉइंट्स का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा, या फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. देन हाउ टू अराइव एट दिस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन dx dy dz. वी हैव टेकन स्मॉल, जैसे हमने r का थोड़ा सा बढ़ाया तो dr हो जाएगा. अगर मैंने थीटा का थोड़ा सा चेंज किया तो क्या हो जाएगा, r इंटू डी थीटा हो जाएगा. as we have seen in the polar coordinates, r का क्या हो जाएगा, dr कंपोनेंट आ जाएगा. बट यहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ाया एंगल, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन इज r sin थीटा इनटू ये आपका डिस्टेंस हो गया और इनटू डी फाई करेंगे हम लोग. तो फाइनली dx dy dz के लिए ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा dr d theta d phi. That is what we got over here. dx dy dz is equal to r sin theta, r square sin theta dr d theta d phi. तो ये सब फॉर्मूले, कन्वर्जन फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने पूरे. You have to take this as a note. So let me go for the today's session. We will start. Okay.
Just 1 minute. I will just post in the group. Why people are not joining? Okay. So if your region is full sphere, that is x square plus y square plus z square is equal to a square. ये इक्वेशन हमेशा याद रखो. X square plus y square plus z square is equal to a square is what is this equation is called? Anyone can unmute and say. X square plus y square. ये किसका इक्वेशन है? ये कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशन में? If I am in 2 dimension, what does this equation represent? X square plus y square is equal to a square. Anyone? सब लेक्चर लगा के सो गए क्या? नो सर. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. Or for simplicity, I will write x square plus y square is equal to r square. What does this represent? किसी को नहीं आ रहा है? No sir. Okay, it is a equation of a circle. X square plus y square is a distance from origin. Always ध्यान में रखो, distance from origin कांस्टेंट है. मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन कांस्टेंट है, मतलब r रेडियस का आपका सर्कल बनेगा. इन जनरल आपका इक्वेशन दिया जाता है x माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था. यहाँ पे x में से a घटाया, y में से b घटाया, एंड देन उसका स्क्वायर किया. देन व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस सर्कल विल शिफ्ट टू द अनदर ओरिजिन जिसका सेंटर होगा a, b. मतलब सेंटर शिफ्ट होगा और रेडियस वही रहेगा. मतलब r रेडियस का ही सर्कल है. ये जो डिस्टेंस है वो r ही रहेगा. सिर्फ आपका जो सेंटर ओरिजिन पे था यहाँ पे, वो सेंटर कहाँ पे शिफ्ट हो गया? a, b पे. ओके, so this is the general equation of the circle, and this is the equation of a circle with origin as a center point and radius is equal to r. So x square plus y square is equal to a square. क्या represent करा? You have to take radius is equal to a, take origin at a center and then draw the circle. तो a रेडियस का आपका जो सर्कल बनेगा उसको इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में सर्कल क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा. क्योंकि आप जो 2 डायमेंशन में लेते थे वो क्या करते थे? यू आर टेकिंग डिस्टेंस कॉमन, बट आपके पास 2 ही डायमेंशन है. तो आप जब आप सर्कल डिस्टेंस कॉमन रखते हो हर एक पॉइंट का, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा. अगर यहाँ पे आप 3 डायमेंशन में हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों डायमेंशन में आपको डिस्टेंस कॉमन रखना है, तो आपको क्या मिलेगा? वो जो सर्कल है कोई भी एंगल से ड्रॉ कर सकते हो आप. ओके, तो पूरा अगर कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा?
दिस टाइप ऑफ स्फीयर। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। ओके, 3 डायमेंशन। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट का, उस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लो, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या रहेगा, ए रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप, मैं जो बोल रहा था, ये जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में उन्होंने ड्रॉ किया है, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, z इज इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लेन में वैल्यू ऑफ z क्या रहेगा, z इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a square. Can you get this equation? From sphere equation, if you put z is equal to 0, you will get the equation of a circle in xy plane. Okay. Similarly, यहाँ पे मैंने xy प्लेन में ड्रॉ किया, मैंने कोई और प्लेन में ड्रॉ करता तो मेरा सर्कल कैसे बन जाता, like this. I can draw in anywhere. Okay. So what does circle equation of a sphere represent? All the points which has the distance a from the origin. तो हर एक पॉइंट जो a डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, वो सब पॉइंट का कलेक्शन मुझे क्या देगा, that all points connection will give me the sphere. Okay. Now यहाँ पे लिमिट्स देखो कैसे है, r मतलब कौन से डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। r का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो हर एक डायरेक्शन में फैलता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो कितना डायरेक्शन जाएगा आर का, यहाँ पे वैल्यू 0 है, सेंटर पे वैल्यू 0 है, और एट दिस पॉइंट यहाँ पे भी मैं आर ले सकता हूँ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कोई भी डायरेक्शन में, पूरा 360 डिग्री इंटू 180 डिग्री, मतलब 720 डिग्री डायरेक्शन में आप घुमा सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे फाइनल वैल्यू इज ए। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या होगा आर का, फ्रॉम 0 टू ए। Now next limit theta. Theta is what? Theta is angle made with the positive direction of z axis. तो एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे निगेटिव z एक्सिस है, अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो फाइनली एंगल कितना ही बनेगा, ये सब ओके। तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। आप कोई भी एंगल ले लो, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ऐसे बनेगा। वो सेम एंगल अगर मैंने यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा, क्योंकि हम लोग एंगल जो ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। एक बात ध्यान में रखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन, यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन। आपका इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे एंगल मेजर करना है, तो एंगल में कैसे मेजर करूंगा, ये जो लाइन है कोई तो प्लेन में होगा, वो प्लेन में मैं एंगल मेजर करूंगा। सो अगर मेरा सपोज थीटा कांस्टेंट है, थीटा इज व्हाट, एंगल विद जेड एक्सिस, थीटा इज कांस्टेंट। if I have theta is constant, if I rotate around this, I will get this kind of cone. Okay, so theta constant is equation of a cone, right? तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा, ऐसे डायरेक्शन में मेजर करो, यहां से यहां तक, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी इसी साइड से मैं एंगल लूंगा, तो कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। तो व्हाट इज द एंगल, थीटा का डायरेक्शन 0 टू पाई, सो आर इज 0 टू ए, थीटा इज 0 टू पाई, एंड फाई, फाई अब हमने जैसे देखा था एक्स वाई प्लेन में, if you want to cover whole circle you have to take the value from here to back to here। तो यहाँ पे क्या है,
phi value is from 0 to 2 pi. ओके, सो ये कोऑर्डिनेट्स हमेशा ध्यान रखो. अगर आपको इमेजिनेशन परफेक्ट नहीं है तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा. 1 2 3 4 जितना भी अपना है सबका आपको रट्टा मारना पड़ेगा इसमें. बट अगर आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो वही के वही क्वेश्चन के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन होगा, अगर हेमिस्फीयर है मतलब आधा स्फीयर है तो क्या करोगे. इफ यू हैव हेमिस्फीयर ओनली द ऊपर का जो आधा हिस्सा है, तो यहाँ पे एंगल कैसे कैसे मेजर होता है देखो. पहले तो थीटा, थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 0 से लेके a तक. तो वैसे r का वैल्यू हो गया 0 से a तक. देन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है z एक्सिस से यहाँ तक. यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना है. व्हाट डज दिस एंगल, इट इज अ 90 डिग्री एंगल. सो थीटा वैल्यू इज 0 to pi by 2. एंड what is the phi angle, phi angle is xy plane में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए इट इज अप टू 2 pi. ओके, तो स्फीयर में लिमिट क्या रहेंगे और हेमिस्फीयर में लिमिट क्या रहेंगे. इक्वेशन दोनों में सेम है. ओके, एक और चीज, अगर मेरा ये इक्वेशन है तो मैं z को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. z इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट z इज इक्वल टू निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square minus y square, so that I will get x square plus y square plus z square is equal to a square. So z square is equal to a square minus x square minus y square. और अगर मुझे z का वैल्यू चाहिए तो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा. तो पॉजिटिव भी स्क्वायर रूट होता है, निगेटिव भी स्क्वायर रूट होता है. तो अगर आपका लिमिट्स है फ्रॉम z इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपका क्या बनेगा, पूरा z एक्सिस कवर होगा. अगर मेरा लिमिट है 0 टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, मेरा सिर्फ आधा ही हिस्सा कवर होगा. मतलब z एक्सिस का वैल्यू हमेशा इसमें क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है. सिंस निगेटिव वैल्यू नहीं है अपना, 0 से लेके ये स्क्वायर रूट तक वैल्यू है, तो ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव. हेंस ओनली पॉजिटिव पार्ट ऑफ z एक्सिस इज कवर्ड इन दिस केस. ओके, देन अगर मेरा ऐसा लिमिट होता तो फुल स्क्वायर होता, ऐसा लिमिट है तो मेरा क्या होगा, ओनली हाफ पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज देयर. ओके, नेक्स्ट है आपका ओनली इन वन ऑक्टेंट, मतलब सब वैल्यूज पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है. तो क्या क्या कवर होगा देखो. अगेन आई विल ड्रॉ, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके ये वाला पॉइंट तक. यहाँ पे पॉइंट क्या है, r का डायरेक्शन में. ये वाला पॉइंट पे वैल्यू क्या है, डिस्टेंस का वैल्यू इज a ओवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. So therefore r is goes from 0 to a as it is. Abhi theta is what, angle made with the positive direction of z. अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मेरा पॉजिटिव एंगल विद z कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री. therefore theta is goes from 0 to 90 डिग्री. अभी फाई एंगल है, फाई एंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंगल इन xy प्लेन. इट इज स्टार्ट विद 0, x पे उसका वैल्यू रहता है 0, y एक्सिस पे वैल्यू रहता है उसका पाई बाई 2, इसीलिए थीटा वैल्यू इज 0 टू पाई बाई 2. सो ये वाला लिमिट हमको लेना है. कब लेना है, जब ओनली वन ऑक्टेंट होता है. फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर आपको इक्वेशन इवेल्युएट करने बोलेंगे, इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने बोलेंगे, तो ये वाला लिमिट हमको लेना है. ठीक है, अभी थोड़ा और जाते हैं आगे. We'll go for the move. Then what do we get? Equation of ellipsoid.
इलिप्सॉइड का इक्वेशन कैसे आएगा? ये क्यों हो जाता है? ठीक है, इलिप्सॉइड का स्ट्रक्चर समझ लो अंडे जैसा होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अंडे जैसा होता है? It is not perfect sphere. It is like this form. If you take the image, it is like this form. So अंडे जैसा आपका शेप होगा। हर एक 3 डायमेंशन में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या है? ए है। वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है? बी है। और जेड एक्सिस पे वैल्यू क्या है? सी है। तो इन सबको अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इलिप्स मिलेगा। तो इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमेशा क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्सॉइड। अगर आपको 2 डायमेंशन में चाहिए तो 2 डायमेंशन में इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और इलिप्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 डायमेंशन में? यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे डिस्टेंस होगा a, यहाँ पे डिस्टेंस होगा b, एंड आई कैन ड्रॉ द इलिप्स। ओके, व्हाट डज दिस मीन? आपका सर्कल जो होता है एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, एक रेडियस ले लो और उसका आप रेडियस लेके घुमा लोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्फीयर मिलेगा। इलिप्स में क्या होता है? 2 सेंटर्स होते हैं। तो आप अगर सपोज इमेजिन करो कि आपके पास अगर सपोज 2 खिले अपने जो नेल्स होते हैं वो आपने इधर डाल दिए और यहाँ पे एक रस्सी बांध ली और यहाँ पे उसमें पेंसिल रखा आपने और ये पेंसिल घुमा दिया, तो आपको जो शेप मिलेगा वो शेप होता है इलिप्स। तो इलिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपने जो प्लैनेट्स है, बहुत सारे प्लैनेट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द perfectly sphere way. They are revolving around the sun in the elliptical way. तो उनका जो रिवॉल्विंग का पाथ होता है सन के साथ वो इलिप्टिकल पाथ होता है। और अपने अर्थ का भी जो पाथ होता है सन के साथ वो भी इलिप्टिकल पाथ होता है। So there are some times where earth is very near to the sun and there are some times where earth is more away from the sun because of this elliptical path. ओके, जो सन होता है वो हमेशा अगर आप उसको सेंटर माने तो अर्थ का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। सो मेनी अ टाइम्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। सो दिस इज इलिप्सॉइड। अभी इलिप्सॉइड का इक्वेशन होता है कोऑर्डिनेटल इक्वेशन। सिंस एक्स एक्सिस पे टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस इज a, you have to multiply the spherical coordinate with a. y एक्सिस पे जो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया उसमें b डाल दो। z एक्सिस में जो भी आपने कोऑर्डिनेट्स देखा है उसमें c डाल दो। ठीक है, ये थोड़ा मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने यहाँ पे cos थीटा आना चाहिए। It should be cos theta. Let me just check whether I am wrong here or not. It should be c times r cos theta. Just give me a minute. हाँ, it is c times r cos theta. So I will correct it from the notes. Sin phi is wrong. वो मैंने copy paste में गड़बड़ किया. But it is z is equal to c cos theta. So जो भी आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सब्स्टिट्यूशन किया था वही सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ एक्स वाई जेड के साथ ए बी सी चले आते हैं। सो व्हाट इज dx dy dz abc इंटू, क्योंकि हर एक में हमने abc मल्टीप्लाई किया, abc इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। लिमिट्स जो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वही लिमिट्स लेने हैं। r का जो वैल्यू है 0 टू a जाएगा, थीटा का वैल्यू जो है 0 टू पाई जाएगा एंड फाई का वैल्यू जो है 0 टू 2 पाई जाएगा। ये a वाला वैल्यू जो है मतलब क्या है? इन तीनों में से abc में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू रहेगा
वो वैल्यू हमको आर को देना है। एक्चुअली यहाँ पे 1 होना चाहिए। आर फ्रॉम 0 to 1, theta from 0 to pi, phi from 0 to 2 pi, as usual. So let us solve this example based on this particular concept, ellipsoid and okay. So come this particular part, evaluate the triple integration 0 to a square minus x square, 0 to a square minus x square minus y square, xyz dx dy dz. So let me tell you one thing, as मैंने point out किया, ये जो लिमिट्स है वो z का लिमिट है. Okay. So z is equal to 0 to z is equal to a square minus x square minus y square. So let us draw this on the plane. So ये आपका जो ये है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड ये क्या है z एक्सिस है. तो अभी क्या करता है, z इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर का ही पार्ट अपने को कंसीडर करना है. देन हमको क्या बोला है, z कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये जो पूरा प्लेन है उसका सिर्फ आधा स्फीयर, ये जो आधा हिस्सा है ऊपर वाला वही कवर करेगा. देन नेक्स्ट क्या है, एक्स वाई प्लेन में भी पूरा कवर नहीं कर रहा है. एक्स वाई प्लेन में कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. तो जब आपका 0 से लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक जाता है, तो मतलब क्या है, आपका ये जो सर्कल है उस सर्कल का, this circle का only आधा हिस्सा will be covered, only आधा हिस्सा will be covered. And finally x का जो लिमिट है ये माइनस a से a होना चाहिए, बट वो 0 से a तक है, इसीलिए एक्स वाई प्लेन में सिर्फ इतना, ये वाला जो पार्ट है ओनली इन द एक्स वाई बोथ आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इतना ही कवर्ड हो रहा है. तो मैं पूरे का अगर कर दूं तो इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, बट स्फीयर इक्वेशन कौन से ऑक्टेंट में, ओनली इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, जहां पे x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 एंड z भी ग्रेटर देन 0 है, वो सिर्फ हिस्सा कवर हो रहा है. क्यों कवर हो रहा है, मैं पहले से बता देता हूं कि अगर आपको पूरा स्फीयर कंप्लीट करना है तो पूरे स्फीयर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दैट z एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यू कवर होगा, निगेटिव वैल्यू कवर होगा. देन माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y का लिमिट है. y का लिमिट में अगर ये वाला वैल्यू आया तो पूरा सर्कल कवर होगा एक्स वाई प्लेन में. एंड x का लिमिट अगर माइनस a से a रहा तो अपना पूरा ये सर्कल कवर होगा. सो अगर मेरा एक भी रॉन्ग है, सपोज मेरा सिर्फ यहाँ से 0 to a है और बाकी का एज इट इज रखा है मैंने, तो मेरा इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बनेगा, बट स्फीयर का कौन सा पार्ट कवर होगा, एक्स एक्सिस का जो निगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसका निगेटिव वैल्यू है वो कवर नहीं होगा, क्योंकि 0 to a है, एक्स में 0 to a है, मतलब x का निगेटिव वैल्यू कवर नहीं हो रहा है इसमें स्फीयर में. अगर मेरा इक्वेशन ऐसे है माइनस a to a, मतलब x का निगेटिव कवर हुआ, यहाँ पे 0 से लेके a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या होगा, सिंस मेरा y एक्सिस पे ओनली पॉजिटिव वैल्यू रह रहा है, तो मेरा ये जो हेमिस्फीयर बनेगा वो अपर पार्ट में बनेगा हेमिस्फीयर. तो डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द वैल्यूज आर absent, वो जो लिमिट्स है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको. वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, कौन सा रीजन इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है. सो हमेशा याद रखो, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के चक्कर में मत पड़ो. आपका जो है, आपका जो क्वेश्चन 4 रहेगा उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, देयर विल बी 6 questions.
ABCDEF, यहाँ तक आपका जो डी पार्ट तक क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन पे रहेगा. If you see the question paper, you will get that there are 4 questions from double integration and only 2 questions from ट्रिपल इंटीग्रेशन. तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में बहुत ही हार्ड कंसेप्ट है. तो आप कौन सा अगर करोगे, अगर आया तो आप डायरेक्टली अगर करने मिलता है तो करो, अगर उसको कन्वर्ट करने का बोला है तो मत करो. तो फॉर एग्जांपल मैं ये जो इक्वेशन है उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ. आई हैव दिस लिमिट्स ना, so I don't need to convert this into some other thing. I can directly solve as well. तो directly solve कैसे करते हो बाद में देखेंगे. First we will solve using spherical coordinate. और ये जो इंटीग्रेशन है डायरेक्टली सॉल्व करने में भी बहुत तकलीफ होता है. ओके, तो लेट अस सी. ये तो मैंने बता दिया आपको कौन से इक्वेशन के लिए क्या लेना है, आइडेंटिफाई किया. सिंस इट इज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑल द वैल्यूज, x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, z का वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए कौन सा रीजन में, फर्स्ट ऑक्टेंट में है. वी विल राइट दिस इक्वेशन. फर्स्ट ऑक्टेंट का लिमिट जो हमने डिस्कस किया था वो लिख दिया. r इज इक्वल टू 0 टू a, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, फाई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट का जो हमने पहले इसके ऊपर जो 4 चीजें डिस्कस की थी उसमें फर्स्ट ऑक्टेंट का ये लिमिट्स डिस्कस किया था. ओके, now we change this integral into spherical coordinates. Spherical coordinates में convert किया तो क्या मिलेगा, 0 to a, 0 to a square minus x square, 0 to a square minus x square minus y square, x y z dx dy dz. इसका spherical coordinates में क्या होगा, it is integration, ट्रिपल इंटीग्रेशन. आपका जो वैल्यू है वो लिख दो. r goes from 0 to a, theta goes from 0 to pi by 2 and phi goes from 0 to pi by 2. What is x? X is r cos theta sin theta cos phi. y का वैल्यू लिखो, z का वैल्यू लिखो, dx dy dz का वैल्यू लिखो. तो ये 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो लिखते हैं. तो लेट अस गो डाउन. सब समझा कौन कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. x के जगह पे क्या करना है, एक r cos r sin थीटा cos y, y r sin थीटा sin phi एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. डिलीट कर देता हूँ. लेट अस गो डाउन. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, r sin थीटा cos phi sin theta sin phi, r cos theta r square sin theta dr d theta d phi. So substitute the values. We got this r कितने बार आया है, r यहाँ पे आ रहा है, r यहाँ पे आ रहा है, r यहाँ पे आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है. तो अगर r का टोटल पावर कितना रहेगा, r इंटू r स्क्वायर इंटू r क्यूब इंटू r स्क्वायर, r रेज टू 5. देन साइन थीटा देखते कहाँ पे आ रहा है. यहाँ पे एक साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे एक साइन थीटा आ रहा है और यहाँ पे एक साइन थीटा आ रहा है. तो साइन थीटा कितनी बार आ रहा है, वी गॉट साइन थीटा 3 टाइम्स, so इट इज साइन क्यूब थीटा. देन कॉस फाई, कॉस थीटा एक ही बार आ रहा है, तो कॉस थीटा का टर्म एक ही बार आ रहा है तो वो कॉस थीटा लिख दिया. देन यहाँ पे साइन फाई है, यहाँ पे कॉस फाई है, dr d theta dz. तो इसको terms we have taken the together terms, all the terms we have taken together. अभी पोस्ट इंटीग्रेशन ये वाला जो है वो किसके रिस्पेक्ट टू है, d5. तो लिमिट्स हमेशा याद रखो कि आप लिमिट जो सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन से, क्योंकि 2 बार एंगल है तो कौन सा एंगल किसके लिए है, कभी कभी दोनों का अलग अलग वैल्यू आता है लिमिट्स में, इसीलिए ध्यान रखो कि कौन सा लिमिट आपने किसके लिए, किस वेरिएबल के लिए लिया है. तो अगर 0 टू पाई बाई 2 अपने फाई के लिए लिया है तो पहले फाई का इंटीग्रेशन सॉल्व करो लाइक दिस. तो आपको क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन फाई कॉस फाई डी फाई डी थीटा डी आर. तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, साइन फाई कॉस फाई, वी नो दैट, आपको ये फॉर्मूला पता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin of x into cos of x. 2 sin of x into cos of x. तो sin of x into cos of x का के लिए क्या होगा, sin 2x अपॉन 2. तो वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, sin 2 थीटा अपॉन 2, बिकॉज हम लोग को sin थीटा इंटू cos थीटा का इंटीग्रेशन नहीं पता है, बट sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमको पता है. तो 1/2 बाहर निकालो,
What is integration of sine? Integration of sine is minus cos, minus cos x. बट यहाँ पे cos के साथ sin के साथ 2x जुड़ा हुआ है, तो sin 2x के इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x अपॉन जो भी मल्टीपल है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 इंटू कॉस माइनस cos 2x अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन किया तो 1/4 टर्म आएगा, तो इट इज माइनस cos 2 थीटा अपॉन 4, बाकी का एज इट इज लिखा है। लिमिट्स क्या होंगे 0 से लेके π/2। अभी लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, माइनस cos ऑफ 2π, 2π मतलब 2 इंटू π/2 cos π अपॉन 4 माइनस ऑफ cos 0 अपॉन 4। cos π का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस विल बिकम +4, यहाँ पे माइनस माइनस विल बिकम प्लस, cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिलेगा 1/4 प्लस 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 होता है 1/2, वो लिखा है यहाँ पे। अभी ये वाला इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन करने का सिंपल तरीका है पुट, जब साइन थीटा का आपको पता है डेरिवेटिव कॉस थीटा आने वाला है, तो आपको पुट करना पड़ेगा t इज इक्वल टू साइन थीटा। व्हाट इज dt, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, एनीवन? Cos theta. cos थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अभी लिमिट्स देखो, थीटा के लिमिट्स क्या है 0 से लेके π/2, तो पहले लेंगे थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, t का वैल्यू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 रखो, क्या होगा t का वैल्यू, साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0. ओके, साइन 0 इज 0, सो आई कैन राइट t इज इक्वल टू 0। अभी थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 हुआ तो कॉस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन π/2 कितना होता है 1। ओके, सो आपका लिमिट्स कैसे कैसे मैंने कैसे किया देखो, अभी फिर ये हमेशा यूज हो रहा है आपको कंसेप्ट सब्स्टिट्यूशन का। साइन थीटा को क्या रखा, t रखा, तो cos थीटा डी थीटा ये जो टर्म है इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। देन थीटा का लिमिट देखा, थीटा का लिमिट क्या है 0 से π/2, तो t का लिमिट क्या आएगा वो देखना है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखो, ये इरेज कर दिया मैंने, तो लेट अस गो डाउन। तो जैसे मैंने बोला था थीटा इज इक्वल टी पुट किया, थीटा का वैल्यू से जगह t का लिमिट आएगा when theta is equal to π/2, t is equal to 1. So let us write this in limits inside this, ये इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, साइन थीटा क्यूब था इसीलिए टी क्यूब डी टी, टी क्यूब का तो आपको इंटीग्रेशन अभी पता है, टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t⁴/4, लिमिट्स चेंज होके 0 and 1 बन गया। सो सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स 1/4 माइनस 0 इंटू dr, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 कंबाइन होके 1/8 बन गया, 1/8 इंटू r5 इंटू dr, r5 का इंटीग्रेशन क्या होगा r6/6, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो a से लेके 0 तक, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट a6/6 माइनस 0, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, बाहर क्या बचेगा 1/8 बचेगा। नाउ सॉल्व, मल्टीप्लाई a⁴ दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अभी हमने देखा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, किसके टर्म में था, वी हैव कन्वर्टेड दैट कार्टेशियन इंटीग्रेशन इनटू द spherical integration and then we have solved the integration, but someone doesn't want to do this, someone wants to solve directly, तो directly solve करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो let me erase all this, let us take the same integration and देखते हैं a⁴ आंसर आता है कि नहीं, and you will see that you will
टेल मी सर आपने जो किया वो सही था. ओके, so let us solve this integration. What are the limits? किसी को याद है तो बताओ. 0 to a. Next 0 to 0 to root of a a square square minus minus x square 0 to root of a square minus x square x square minus minus y y square. वन नहीं था. x y z into dx dx. dy and dz. ओके, तो लेट मी सॉल्व फर्स्ट. ये लिमिट्स किसके टर्म में? x एंड y के टर्म में. तो z इज एब्सेंट, तो पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे? dz के साथ करेंगे. z का इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट रखेंगे. सो मैं लिख सकता हूँ 0 to a 0 to रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मेरा हैंड राइटिंग गंदा है इसमें, सो थोड़ा आप समझने की कोशिश करो. x into y. X into y is a constant taken outside. What is the integration of z with respect to z? Integration क्या आएगा? z raised to s. z square upon 2. z का इंटीग्रेशन क्या आएगा? z square upon 2. लिमिट्स फ्रॉम 0 to लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और क्या बचा अपने पास? dx dy बचेगा, राइट? अभी लेट अस सॉल्व. z स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करो. अगर मैंने रूट का स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा? xy इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस 0 का 0 ही मिलेगा. सो आई विल टेक ओनली दिस टर्म 0 टू रूट ऑफ a square minus x square, and this is limit from 0 to a, and I can take this 1/2 outside of the integration. तो अभी लिमिट्स किसके टर्म में है? लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x, so I will integrate with respect to y. तो पहले dy करेंगे एंड बाद में dx करेंगे. ओके, तो अभी इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आता है. dy है तो x कैन बी टेकन आउटसाइड. अभी इसका जो फॉर्म है वो कैसा फॉर्म है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. आइदर आई कैन सॉल्व यूजिंग y इनटू ये भी फंक्शन ऑफ y है. So let us simplify this first. 1/2 integration from 0 to a. x can be taken outside क्योंकि उसमें y के कोई डिनोट नहीं करता. 0 to root of a square minus x square. अभी y into root of a square minus x square minus y square into dy और बाद में dx. ओके, सो दिस इज योर इंटीग्रेशन. सो नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो आइदर यूवी रूल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं करना यूवी रूल अप्लाई तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? You can solve it using you can multiply this y inside and then you can solve, or but वो भी complicated हो जाएगा. So what I will do over here, I will do this y square as t. Put this y square as t. So अगर मैंने y square को t लिख दिया तो क्या होगा? Why I'm putting t is equal to y square only? What will be the dt? y square का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y. 2y into dy. तो ये जब टर्म ऐसे कुछ बाहर दिख रहा है मुझे y into dy, तो उसके जगह पे मैं dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो मेरा बहुत अच्छा मेथड जो होगा वो क्या होगा? मेथड ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे यहाँ पे. t इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रखा तो dt इज इक्वल टू 2y dy हो जाएगा. ओके, तो dt बाई 2 मतलब y dy के जगह पे dt बाई 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 का 1/4 हो जाएगा. नेक्स्ट
What are the limits? Y is equal to 0. Put y is equal to 0 in t. क्या होगा t का इक्वेशन? y को 0 0 y is equal to root of a square minus x square. What is the equation of t? a square minus x square. स्क्वायर रूट चला जाएगा. t is equal to a square minus x square. So let us come to this side. So मैं आपका स्क्रीन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये वाला. Okay. Now let us take this into the calculation. So यहाँ पे क्या है, हम लोग को ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. तो सबसे पहले मैं एज इट इज लिख देता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, देन x एज इट इज, x लिख दिया. अभी ये वाला इंटीग्रेशन का लिमिट क्या चेंज हुआ, 0 से लेके स्क्वायर रूट चला जाएगा, a square minus x square. देन व्हाट डज दिस y dy, y dy को की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y dy के जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt/2, राइट, dt/2 लिख सकता हूँ. और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट ऑफ a square minus x square minus t, राइट. एंड देन बाहर क्या रहेगा, dx. लेट अस फर्दर, ये बाहर लेते हैं, 1/4 ही लिख देते हैं बाहर डायरेक्टली. 0 to a x into what is this value, 0 to a square minus x square. ओके. नाउ ये वाला वैल्यू क्या है, समथिंग कांस्टेंट माइनस टी, उसका पावर है हाफ, राइट. क्योंकि ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी विथ रिस्पेक्ट टू टी कांस्टेंट है. तो आपका जो वैल्यू बचेगा वो क्या है, सम कांस्टेंट माइनस टी रेज टू हाफ. सम कांस्टेंट माइनस टी रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर पावर x रेज टू n, क्या होता है, x raised to n upon x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो अभी हम क्या करेंगे, वही यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टी, उसका पावर था हाफ, हाफ का 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू dx. तो ये जो इंटीग्रेशन है वो चला जाएगा और जो लिमिट है वो यहाँ पे आ जाएंगे. लिमिट क्या है, 0 से लेके a स्क्वायर माइनस. तो देखा आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये सम इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. 1/4 0 to a, ये क्या होगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2. 3/2 को मैं रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल होगा 3/2 का 2/3 इंटू x इंटू ये जो वैल्यू है वो मैं t में डाल देता हूँ. t में जो लिमिट्स डालूंगा वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सॉरी ये माइनस साइन आएगा बाहर, क्योंकि ये जो t का जो साइन है माइनस है ना, तो नीचे भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा. क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा t के साथ पॉजिटिव कांस्टेंट जोड़ा होता तो मैं एज इट इज रख देता, बट वो निगेटिव कांस्टेंट है तो ये माइनस साइन में बाहर ही रख देता हूँ पूरे इंटीग्रेशन के. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट लिमिट हो गया. माइनस 0 वाला लिमिट क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे होगा dx. तो लेट अस टेक 1/4 इंटू 2/3, तो ये होगा 2/3 1/6 माइनस 1/6 इंटू ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. देन बचेगा क्या, 0 to a, ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो डायरेक्टली आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx. तो अभी इंटीग्रेशन करते हैं. तो इट इज 1/6
into integration of a square x minus x cube integration with respect to dx and limit रहेगा 0 to a. So let us solve this integration. 1 by 6 into a cube, a square into x square by 2. By 2 minus x raised to 4 by 4. X raised to 4 by 4. तो इसको सॉल्व करो 0 to a में. तो पहला लिमिट आएगा a4 by 4, a4 by 2 माइनस दूसरा लिमिट आएगा a4 by 4. तो आपका फाइनल वैल्यू क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो a4 by 4 नहीं a4 by a raised to 4 by 4. तो a raised to 4 by 6. अभी मैं 1 by 2 minus 1 by 4 करूंगा तो 1 by 4 होगा. तो a raised to 4 by 24 आएगा. तो फाइनल आंसर इफ आई राइट, ये इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको नहीं समझेगा. ये वाला इरेजर क्यों ले रहा हूँ मैं? So let me take it down. अरे okay. So it is 1 by 6 into a4 by 8. Okay, a4 by 4. So it is a raised to 4 by 24. तो कहाँ गड़बड़ हुआ मेरा? यहाँ पे क्यों ऐसे आ रहा है? लेट मी सी, मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है क्या? z स्क्वायर बाई 2 में लिमिट का कहाँ राइट? t is equal to y square, dt is equal to 2y dy. So 1 by 4 बाहर आया. लिमिट्स डालते वक्त गड़बड़ किया क्या? सर वो -1/2 +1 आएगा ऊपर 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 उसका रेस्ट पर. नहीं, रेस्ट ये माइनस बराबर है क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है ना. स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे 3 हाँ, मैंने यहाँ पे 3/2 नहीं यूज किया. तो दिस इज रेस्ट टू 3/2. तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 मैंने यूज नहीं किया यहाँ. तो जब सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन में I have to use this 3/2 power outside. So 3/2 पावर नहीं यूज किया. तो ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 इंटू एक्स. तो फिर इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है नीचे का, यहाँ से आगे गलत हो गया. तो इसके आगे हम लोग करते हैं. तो लेट अस सिलेक्ट एंड डिलीट. सो आपको हमेशा ध्यान रखो, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बहुत ही मिस्टेक्स होते हैं. डिलीट कर देता हूँ ये. इसके आगे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन. ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट. ओके. सो 3/2 जो पावर मैंने नहीं लिया था वो लेते हैं. तो इट इज 1/6. सॉरी, ये रहेगा नहीं. डिलीट. थोड़ा जो गलती किया वो दिखाने के लिए मैं रेड पेन यूज करता हूँ. आगे कैसे सॉल्व होगा? 1/6
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो what we can do, we can write again the same substitution, put t is equal to x square, what is dt, x dx, तो x dx को हम लोग dt लिख सकते हैं फिर, when t is equal to 0 tell me what is the value of x, sorry, x is equal to 0 means t is equal to 0, 2, x is equal to a means t is equal to a square, right? अभी कर सकते हैं सॉल्व, 1/6 बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a स्क्वायर माइनस t रेज टू 3/2 इंटू dt, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दिस इज 2x dx, so dt/2 इज इक्वल टू x dx, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था वैसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा 1/12 a स्क्वायर माइनस t, 3/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2 प्लस 1 इज 3 प्लस 5, 5/2 रेज टू 5/2 अपॉन 5/2, ओके, और लिमिट्स होंगे 0 से a स्क्वायर तक, तो पहला लिमिट जो है वो 0 हो जाएगा, ये माइनस 5/2 बाहर आ जाएगा, तो इट इज इफ आई सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, तो 1/2 इंटू सॉरी 1/12 इंटू 2/5, ओके, तो ये 1/6 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, तो पहला लिमिट इज 0 हो जाएगा, दूसरा लिमिट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0, सो a स्क्वायर रेज टू 5/2 a स्क्वायर रेज टू 5/2 बराबर, तो a रेज टू 10 हो रहा है यहाँ पे, a रेज टू 10 अपॉन समथिंग, आई हैव टू मेक करेक्शन, कहाँ पे तो करेक्शन है, अभी भी करेक्ट नहीं है, समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर, ठीक है ये मैं करके देखता हूँ, बट बेसिकली आपको जब एग्जाम में अगर सॉल्व करना है तो इतना सब चीजें मत करो, सीधा पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करो, पोलर कोऑर्डिनेट्स से एकदम फटाफट आंसर आता है और वहां पे मिस्टेक भी नहीं होता है, ओके, so let us stop here for today, let me download the attendance, okay, okay then